Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. So today we will perform the second experiment. I think in the last lab you performed the first experiment when you will become familiar with the CRO and DSO. Am I right? yes, so And you designed a simple circuit on multisim, applied some input, and observed the output in the grapher. Is that correct? yes, sir. Okay. So in this experiment, we will study the VI characteristics of a PN junction diode. Now, for designing the circuit, the hardware circuit of this particular experiment, we need one PN junction diode, one DC supply, which is variable DC power supply. We will keep changing its input voltage and observe the output. 2 millimeters, 1 millimeter to study the input, to study the voltage across the diode, and another multimeter as an emitter to measure the current flowing through the diode. One breadboard where we connect different components and then different jumper wires as per our requirement. So till now you must have studied in your course about the VI characteristics of diode, that diode works in two different biasing regions. One is your forward bias and another is your reverse bias. In forward bias, we have current in the range of milliampere, and in reverse bias, we have current in the range of microampere. In forward bias, the P side of the diode is connected to the positive part of the DC power supply, and in reverse bias, the N side of the diode is connected to the positive part of the power supply. For an ideal diode, we consider that in forward bias, this component becomes short circuit, and in reverse bias, for ideal diode, we consider that this becomes an open circuit and no current flows through the diode. Okay, so in this experiment, we will design this particular circuit on multisim. We will keep changing the value of input power supply, and we will measure the voltage across this diode as well as current flowing through this branch in which we have placed the diode. So we will measure VD and we will measure ID, and we will see how ID changes with respect to VD in forward bias as well as in reverse bias. Okay, so you know that in forward bias, the current flows very less until the knee voltage of the diode, until the knee point of the diode, or you can also say turn on voltage or threshold voltage. But after threshold voltage, change in current is abrupt with respect to change in the voltage across the diode VD. So we will design this circuit and we will draw a graph between VD and ID for forward bias as well as for reverse bias. So first of all, what you have to do is design a circuit in which we have one resistor R, one diode D1, and one DC power supply. We will connect these components with the help of wire, and then we will place one emitter right here and one voltmeter right here, and we will note down the values of VD and ID while changing the input DC power supply. While you will be doing this, you have to note down the reading for forward biasing and for reverse biasing. You keep on writing the value of VD, then ID, VD, ID. Take at least 10 to 15 values and then plot a graph for forward characteristics. Similarly, for reverse biasing, we will keep on changing the power supply. We will just change its direction, and we will keep on increasing that by a certain step voltage. We will note down the readings of VD and ID. Then we have to draw a curve, a graph between VD and ID. It should be something like this. You have to mark the knee voltage that you observe, and we will not go into the reverse breakdown region. We will keep on increasing up to a certain point, and we will observe that the current is very less in reverse biasing.
Okay, so any doubt on what to do? If not, then go to your multisim.com website, log in into your account, and then start designing this circuit. Vijay sir, हेलो सर। सर आपके पास अभी सेटअप है? सर मैं आधे घंटे में पहुंच के फिर करा देता हूँ, अभी नहीं, आधे ठीक घंटे है, में। ठीक। सर आद्या ने लेट ज्वाइन किया तो उसने मैसेज किया कि आई जॉइंड अ बिट लेट, प्लीज टेल वंस अगेन व्हाट टू डू। Okay, Adya, I think sir is not there, so I'll tell you. He has just explained you about the PN junction diodes. Hello, Just can you hold on. hear me now? Yes, yes, sir. Okay, okay. So in this experiment, we have to study the VI characteristics of a PN junction diode. So you have already studied that in your course. What is the relationship between current and voltage across a diode? In this experiment, we will design a circuit on multisim, and we will observe the same. We will study the same characteristics between V and I. For that, we will be needing one diode, one resistor, and one DC supply, which we will keep on changing. And while changing this, we will connect one voltmeter across this diode and one ammeter in the same branch in which diode is. We will keep on measuring the value of VD and ID, and then we will plot a graph between VD and ID. Same way for reverse bias also, we will change the direction of the diode, or we can also change the direction of the DC power supply in multisim. We will keep on increasing DC power supply. We will keep on measuring these two values, VD and ID, and we will make a table where we will note down all the readings, and then we will plot a graph between VD and ID. Now, while noting down the readings,
please make sure that you are not writing down this reading for VD. This is your input supply. VD is reading of this voltmeter. The probe of voltmeter that you will connect, that is your VD. So you have to note down this reading and not this one. The current reading is okay when you will connect this. There is only one ammeter, but for VD, do not note down this reading. In fact, note down this reading VD. अगर आप तीनों नोट डाउन करना चाहते हो, that's okay, that's fine. But the graph will be between VD and ID. Is that correct now? Have you understood? Yes, sir. He has Okay. texted. आधे बच्चे घर में बोला करो. Take 5 to 10 minutes to design the circuit. In case you have any doubt, please share your screen. So just change the setting for sharing. कैसे सर मतलब? Share पे जाके allow multiple participants to share the screen. Okay, sir, done. Okay. Now, if you have any doubt, students, you can share your screen and ask it.
नहीं, मैं बना लूंगा। फ्री हूँ, 10 बजे फ्री हूँ मैं। 10 बजे फ्री हूँ मैं। आएगी 5 बजे। Okay, Hardik, you have to design this circuit in multi-sim, and you have to note down the readings of VD and ID. You take one resistor, one diode, and Okay, one DC supply. You connect that in this order. Connect a voltmeter right here and an ammeter right here. Okay, now keep on changing the value of DC power supply from 0 to 0.1 to 0.2, 0.3, and so on. And then note down the readings of VD and ID. Okay, change the value of DC power supply in step size of 0.1 and note down the readings of VD and ID. After a certain point, you will see that when we change the value of DC power supply, the change in VD will be very less. So you can increase your step size, but then you can note down the readings of VD and ID. You have to note down the readings up to a point when your VD is around 0.8 volt, 0.7 to 0.8 volt, 0.8, 0.9 तक अगर आप ले जाते हो तो ठीक है. 0.8 की रेंज तक रहे तब तक आपको नोट करनी है. Then you have to plot the graph. Same way, you have to design this circuit in which you have just reversed the polarity of diode, or you can also reverse the DC power supply. And then you have note down the reading of VD and ID. Okay, so this reading should be in microampere and this reading should be in milliampere. And one more thing, increase the value of DC power supply in reverse bias by 1 volt. Step size should be 1 volt. 0, 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से आप 10 वोल्ट तक या 15 वोल्ट तक रीडिंग ले सकते हो. Whereas in forward bias, you have to increase the DC power supply in starting with a step size of 0.1 volt. ठीक है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कम चेंज बहुत कम आ रहा है तो आप उस स्टेप साइज को बढ़ा सकते हो. ओके okay, sir. Okay. Where we have to connect voltmeter and ammeter? You have to measure the voltage at this point. To connect voltmeter right here, similarly you can connect an ammeter. So in this particular case, you can also see that you can also use that VI probe, जिसमें voltmeter और current एक साथ measure करते हैं. आप वो वाली probe भी जो है एक ही point पे लगा सकते हो. So you will simultaneously get the reading of VD and ID using a single probe. Yes, sir. Okay. हेलो सर. Yes. हेलो सर. तो दिखा हाँ, दो विजय जी. सेटअप जी. हाँ जी सर, ठीक है. हाँ, हो गया सेटअप. हाँ सर, सेटअप लगा दिया मैंने. चलो सेटअप ठीक है, मैं पहले से लगा हुआ. आप शेयर करके आप दिखा दो अभी. ओके सर. आप लोग डिजाइन करते रहिए, ठीक है. और एक बार बीच में 5 से 7 मिनट के लिए सर आपको जो है वो हार्डवेयर पे दिखाएंगे कि कैसे ये सर्किट डिजाइन करते हैं. यस, अभी दिखाता हूँ. इस इंस्ट्रूमेंट ये देखिए, ये हमारी डीसी पावर सप्लाई है जी. डीसी पावर सप्लाई सुनाई दे रही है मेरी बात सभी को जी? हाँ जी विजय जी, सर. सुन रहे हैं. ये पावर सप्लाई हो रही है हमारा एमीटर, क्योंकि हमने इसको रखा हुआ है यहाँ पे. देखिए 200 मिली वोल्ट पे रखा हुआ है. ये इसका एरो है, ये वाला जी, इसके अंदर एरो बना हुआ है थोड़ा सा. और ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर. इसको मैंने रखा है वी लॉजिक पे रखा है जी, मीन्स यहाँ पे. ठीक है जी. तो ये हमारा वोल्ट मीटर हुआ और ये हमारा एमीटर हुआ और ये हमारी डीसी पावर सप्लाई हुई और ये हमारा सर्किट लगा हुआ है जी. ठीक है जी. ये रजिस्टर है 1 किलो ओम का और ये है हमारा डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, सिलिकॉन डायोड है हमारा. मैं आपको इसकी शेप बता देता हूँ. यहाँ रखा हुआ है. मेरे पास बड़ा है
तो मैं आपको इजीली बता पाऊंगा। देखो ये ब्लैक बॉडी है जी सबके पास, ये जो हमारा डायोड है इसके अंदर ब्लैक बॉडी है, ठीक है जी, और इसके अंदर सिल्वर का बैंड बना हुआ है, कुछ इंचेस के स्पेसेस में बना हुआ है, तो हमारा कैथोड हुआ, और जो इसका बैक बॉडी हुआ वो हमारा एनोड हुआ। मींस कैथोड हुआ नेगेटिव, एनोड हुआ पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हम इसको फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे हमारा सर्किट में ऐसे लगा हुआ है, जो बैंड है वो नीचे है इस समय, तो ये हमारा होगा फॉरवर्ड वाइज, ठीक है जी। जब इस बैंड को ऊपर कर देंगे तो ये हमारा रिवर्स वाइज होगा। तो हम शुरू करें रीडिंग लेना जी, ठीक है। आप देखो इसकी है जो रीडिंग हमारी 0.1 है डीसी पावर सप्लाई में, ये वाली जो विजय जी, रीडिंग है। विजय जी, हाँ जी सर जी। एक बार सर्किट पे ब्रेडबोर्ड पे फोकस कर लो, एक बार वहीं पे होल्ड कर लो। ओके सर, ठीक है जी। सर्किट मैं बता देता हूँ, एक बार होल्ड कर लो, थोड़ा सा फोकस कर लो उसको स्क्रीन पे। हाँ जी कोई नहीं सर, ठीक है। हाँ हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है और एक डायोड लिया हुआ है, ठीक है। और रजिस्टर को का जो कनेक्शन है, जो हम आउटपुट लेंगे वो हम इस पॉइंट से ले रहे हैं, और इनपुट जो लगाएंगे हम वो रजिस्टर पे लगाएंगे, ठीक है। और रजिस्टर और डायोड के बीच में भी एक कनेक्शन होना चाहिए। विजय जी, वो कहाँ से, कौन सी वायर से है? हैं सर, रजिस्टर और डायोड के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन से वायर से है? जो रजिस्टर में है ना सर जी, ये देखो, ये जो रजिस्टर का पॉजिटिव है यहाँ पे जा रहा है सर, रजिस्टर के एक टर्मिनल में जा रहा है ऊपर सबसे ही, ठीक है, ठीक है जी। और जो जो वोल्ट मीटर का, सॉरी एमीटर का नेगेटिव है वो जा रहा है डायोड के पॉजिटिव में। ठीक है, जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो जा रहा है पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव है वो जा रहा है रजिस्टर के एक टर्मिनल में जी, सबसे ऊपर ये वाला। और ठीक है, पावर सप्लाई का पॉजिटिव जा रहा है रजिस्टर में सर, ये देखो ये वाला जो पॉजिटिव है यहाँ पे जा रहा है सर। और ठीक जो है, सर जो इसका नेगेटिव है हमारा वो जा रहा है डायोड के नेगेटिव में, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज है सर। ठीक है। तो गाइस, हमने अभी क्या किया हुआ है कि रजिस्टर और डायोड में, मल्टी सिम में तो हम डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर देते हैं, बट वी हैव टू मेजर द करंट इन द branch in which we have connected the diode. So to measure the current, we have to connect the emitter in series. So that's why what we have done is we have connected one end of the emitter to resistor and another end of the emitter to the diode. So current will flow, and we have connected the emitter in the series. So that's why we cannot see a direct connection between diode and resistor in this circuit. क्योंकि आपको एमीटर जो है वो सीरीज में लगाना पड़ता है, और वहां से आपका जो करंट है वो उसमें से फ्लो होगा। वोल्टमीटर हम पैरेलल में लगाते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन सी दी बोथ द कनेक्शंस ऑफ द वोल्टमीटर अक्रॉस द डायोड, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये डाउट आया कि रजिस्टर और डायोड तो कनेक्टेड ही नहीं है, दे आर कनेक्टेड वाया एमीटर। So if you will look into the circuit of your lab manual, you will see there also there is an emitter between the resistor and diode. Okay, Vijay ji, now keep show them the readings of VD and ID. हाँ जी, हम जो मेरी बात सुनाई दे रही है सबको जी यहाँ से जी? मेरी बात सुनाई दे रही है जी? नहीं, मेरी बात सुनाई दे रही है जी? आ रही है विजय जी, आ रही है। तो हमारा फॉरवर्ड वाइज है, हम उसे 0.1 से लेके 1 वोल्ट तक वेरी करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा 0.1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना जी, और यहाँ पे जो एमीटर है हमारा येलो वाला, इसमें 0 है जी सब में, और वोल्ट मीटर में कुछ नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो अब मैं इसको 0.2 करूंगा जी, देखना यहाँ से इसका करंट वेरी करूंगा, 0.2 करूंगा इसको, 0.2, 0.3 कर दिया सॉरी मैंने। अब भी देखिए एमीटर में 0 है और वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू आ गई है, नेगेटिव साइन हमारा हट गया जी। अब मैं इसको 0.4 करूंगा जी, ये हमारा जो ये वाला दिखाई दे रहा है 0.3, अब इसको 4 करूंगा मैं। अब 4 किया, इसमें अभी भी वैल्यू नहीं आई। जो सिलिकॉन डायोड होता है उसकी नी वैल्यू कितनी होती है हमारी, नी वैल्यू कोई बोल सकता है जी? जो इसकी नी वोल्टेज होती है कितनी होती है सिलिकॉन डायोड की? हेलो, कोई नहीं बोल। 0.7। हाँ 0.7 होती है, गुड, ओके। तो अब देखो मेरा यहाँ पे कितना है, 0.4 है ना जी, ये देखो 0.4 है, अभी भी 0 है यहाँ पे, और अभी भी 0 है, सॉरी यहाँ पे वोल्ट मीटर में कुछ है, 0.384 समथिंग आ रहा है। अब इसको मैं करता हूँ 0.5 में, अभी भी देखो इसमें 0 वोल्ट है, और वोल्ट मीटर में तो आता ही रहेगा हमारा। ये ब्लैक वाला वोल्ट मीटर है, येलो वाला हमारा एमीटर है। अब मैं इसको करता हूँ 0.6 पे, ये देखिए अभी भी इसमें कुछ भी नहीं आया है,
और इसमें तो चलेगा ही हमारा, ठीक है। मैं ऐसे अल्टरेट करके आपको दिखाता रहता हूँ। 0.7 में देखो अब आएगा हमारे पास, ये देखिए 0.7 में, यस 0.7 के थोड़ा सा बाद में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो ये, यानी कि 0.4 0.2 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है ये। तो इसमें कुछ कंडक्शन शुरू हो गया है, मीन्स 0.7 के बाद हमारा कंडक्शन शुरू हो रहा है, तो इसमें देखो इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ 0.8 समथिंग 1 वोल्ट कर देता हूँ इसको, ये देखिए अब ये 1 वोल्ट आ गया ना जी, 1.01 वोल्ट आ गया हमारा, और नीचे एम्पियर लिखा है, ऊपर वोल्ट लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, और वोल्ट मीटर भी इंक्रीज होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये देखिए मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा, और ये यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पे 6 हो गया, देखो पहले 5 था, 0.637 हो गया है। तो ये तो हमारा था फॉरवर्ड वाइज। अब हम करेंगे रिवर्स वाइज में, थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया 6 वोल्ट, 6.2 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ भी हमारा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है एमीटर में, येलो वाला एमीटर एंड ब्लैक वाला वोल्ट मीटर। तो इसमें ऐसी रीडिंग आ रही है। सर रिवर्स वाइज कर दूं अब जी, किसको डाउट इसके अंदर? ठीक है, अब मैं इसको फ्लिप करूंगा जस्ट। ये देखिए ये डायोड है ना जी, इसको मैंने उखाड़ा, ऐसे उखाड़ूंगा इसको थोड़ा राइट, ये देखिए ये उखाड़ दिया मैंने डायोड। अब इसका जो बैंड था इसको ऊपर कर दूंगा, और उसी डायरेक्शन में इसको लगा दूंगा जहाँ पे इसके कनेक्शन हो रखे थे। मीन जो हमारा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा था वैसे हम लगा देंगे, बैंड को ऊपर कर देंगे बस। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी वोल्टेज है हमारी, 6.2 वोल्ट है हमारी, है ना जी। ये देखिए यहाँ पे 6.2 वोल्ट है, और एमीटर में क्या है हमारा 0 आ रहा है, और वोल्ट मीटर में देखिए कुछ रीडिंग आ रही है हमारी, फ्लक्चुएट कर रही है ये। तो ये स्टैटिक नहीं है। क्यों स्टैटिक नहीं है? क्योंकि हम इसको 1 वोल्ट 2 वोल्ट इससे को चेक करेंगे इसके अंदर। जो फॉरवर्ड वाइज है उसमें हम 0.1 के लेवल में वेरी करते हैं, और जो रिवर्स वाइज है उसमें 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे अल्टरन करके करते हैं हम। तो ये 1 वोल्ट में देखिए वहाँ हमारा क्या है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या है हमारा कुछ भी नहीं है, 0 है, और यहाँ पे हमारा 0.3 समथिंग है। अब इसको मैं 2 वोल्ट करता हूँ जी, ये देखिए 2.2 किया मैंने, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं आया है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है ऐसे ही। तो ये भी स्टैटिक नहीं है हमारा, वोल्ट मीटर स्टैटिक नहीं है, तो एमीटर में क्या आने वाला है, कुछ भी आने वाला नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया समथिंग 12-13 वोल्ट कर दिया, 13.3 वोल्ट कर दिया। आप देख सकते हो अच्छे से, ये देखिए इसमें लिखा है वोल्ट और एम मीटर, एम वाले में हमारे 0 है, और जो हमारा एक्चुअल रीडिंग है हमारी आई एस एंड वीडी की, वो हमने ये लेनी है। ये हमारा वीडी है, ब्लैक वाले को वीडी बोलेंगे, इसको आई एस बोलेंगे हम, जो येलो वाला है। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है, विद डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, ओनली फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज में काम नहीं करेगा ये। तो ये रिवर्स वाइज में रीडिंग नहीं दे रहा है, देखो ठीक है जी। और वोल्ट मीटर में कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है 2 और 3 के बीच में, 3 वोल्ट समथिंग आ रहा है इसके अंदर। ये पॉइंट के लेवल में है, तो आपको हाँ, तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि when we connected the diode in forward bias, then we can see that the emitter, which is the yellow color, there is some reading in there telling us the value of the current flowing through the diode. But in reverse bias, even when we have applied 13.3 volts, then also we can say that there is no current flowing through the diode. Now this was the hardware, and if we have set the emitter into microampere, even that the reading is 0. But when we will be designing the circuit in multi-sim, you guys can see some reading in picoampere. That is very less amount of current flow through the diode. Okay, Vijay, now you can stop sharing the screen. अभी हटा सकते हो ओके आप. सर, थैंक यू सर। Okay. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर वो जो ब्लैक वाले वोल्ट मीटर में वोल्टेज शो हो रही थी वो किसके अक्रॉस वोल्टेज शो हो रही थी? That was voltage across the diode. We connected one probe of the voltmeter to one end of the diode and another probe of the emitter to voltmeter to the another terminal of the diode. पॉजिटिव को हमने पी से कनेक्ट किया हुआ था, नेगेटिव को हमने एन से कनेक्ट किया हुआ था. we were measuring the voltage drop across the diode. सर ओके, तो अब आप जो है इसी सर्किट को मल्टी सिम में डिजाइन कीजिए, फिर हम देखते हैं.
फिर हमने ये सर्किट डिजाइन कर लिया है एक डीसी सप्लाई रेजिस्टर और डायोड के साथ, तो फिर ग्राफ का इनपुट लाने के लिए क्या एंट्रीज करनी है सेटिंग्स में? पहले अपनी स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड सर, मैं एक्चुअली डिफरेंट डिवाइस पर हूँ तो मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ। हाँ ओके। विजिबल है क्या? अभी तो नहीं। हाँ, नाउ वी कैन सी योर स्क्रीन। Focus it on the circuit. एक सेकंड सर। Okay. So you have connected voltmeter, but you have not connected the ammeter. सर एमीटर एक्चुअली वोल्ट मीटर भी नहीं मिला था। आई कनेक्टेड अ डीसी सप्लाई रेजिस्टर एंड अ पीएन डायोड। No, this knob PR1. You have to connect another knob for measuring the current. आप उसी आप लेफ्ट में आइए थोड़ा, इसको हाँ लेफ्ट पैनल पे फोकस कीजिए। एक सेकंड सर। अच्छा करंट तो करंट के लिए भी वो भी होगा वही और सेम एक हाँ, और आप V और I के नाम से एक होगा, उसको भी यूज कर सकते हो। उसमें एक ही प्रोब में दोनों रीडिंग आ जाएगी। ओके ओके। Now you have to measure the readings across this. You have note down the readings of this V and I, not the input DC supply that you are changing, but VD and ID that are appearing on the probe. And then you have to plot a graph between these two readings. ओके ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर हमने सेकंड नोब कहाँ पर ज्वाइन करनी है? सेम पॉइंट पे जहाँ पे फर्स्ट की है, उसी ब्रांच में, उसी नोड पे। सर एमीटर से पहले? नहीं, आप वहीं पे लगा सकते हो जहाँ पे आपका डायोड का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके सर। Can you guys see the screen? यस यस सर। Okay. आप जब आपने ये वाला कनेक्शन जो किया है, so we have to measure the voltage across this diode and we have to measure the current flowing in this branch ID. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सिंपली या तो आप वोल्टेज के लिए एक प्रोब यहाँ पे लगा दीजिए, सिमिलरली कनेक्ट एंड करंट टू मेजर द करंट एमीटर राइट। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, simply connect one single probe to measure the voltage and current both in the same branch and the node. तो यहाँ पे अब आपकी दोनों V और I की रीडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। So you connect a DC supply then you connect a ground. Okay, now you go there and change the value of this as 0 volt, ठीक है। तो 0 वोल्ट पे आपकी जो रीडिंग है वो तो 0 ही आनी है, ठीक है।
then you can change the value from 0 to 0.1 volt. ठीक है, now you run this again. Okay, ground was not connected. Okay, so now you can see that the input supply is 0.1 volt. VD is also your 0.1 volt, and ID is your 67.68 femtoampere. तो ये दिस इज अराउंड 0. आप इसको 10 की पावर में लिखोगे तो वो ऑलमोस्ट 0 आपको रीडिंग दिखाई देगी. ठीक है, नाउ चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम 0.1 to 0.2. So you can see that the value of VD is also now 0.2 and current is 23 picoampere. Then change it again from 0.2 to 0.3. ठीक है, तो फिर आपकी एक और VDID की रीडिंग आएगी यहाँ से. तो आपको ये वाली रीडिंग नोट नहीं करनी है. आप वैसे करना चाहते हो कर सकते हो VI के नाम से, बट VD और ID के बीच में आपका प्लॉट बनेगा. ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको 0.7 कर देते हैं उस टाइम पे ये आपका VD जो है वो 0.7 नहीं रहता, वो 0.6 के आसपास. ठीक है, और करंट आपका अभी माइक्रो एम्पियर में है. फिर मैं 0.7 की जगह 0.8 करता हूँ, तब भी आपका करंट माइक्रो एम्पियर में है और यहाँ पे भी बहुत कम चेंज है VD में, 611 मिली वोल्ट. तो यू कीप नोटिंग डाउन दिस रीडिंग. आप अपनी तरफ से कर रहे हैं जब करना. ठीक है, फिर मैंने इसको 1 वोल्ट किया, तब भी आपका माइक्रो एम्पियर में करंट है. ठीक है, फिर मैंने 1 की जगह उसको 2 कर दिया, तब भी आप देख सकते हो VD में काफी स्लोली चेंज हो रहा है. वाई? बिकॉज योर डायोड इज रीचिंग इनटू सैचुरेशन रीजन, इज ट्राइंग टू आपके नी वोल्टेज के पास जाने की स्टार्ट कोशिश करेगा. और अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान हो तो एज सुन एज दी VD में जब हम 0.7 वोल्ट हो जाता है तो उस टाइम पे हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं और उसमें नी वोल्टेज के बराबर जो है वही आपकी यहाँ पे दिखाई देती है. यहाँ पर हम वोल्टेज देखते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में VD that will be nearly equal to VT in case of forward bias. क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. अगर आइडियल डायोड है तो ये आपका 0 दिखाई देता, लेकिन अभी आइडियल नहीं है तो इसको हम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं और वो बैटरी होगी हमारी 0.7 वोल्ट. ठीक है, तो वही हमारी 0.7 वोल्ट या फिर VT जो है वो इसके अक्रॉस दिखाई देगा. ठीक है, सो दैट वाज दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस. तो आप यहाँ पे इनपुट सप्लाई बढ़ाते जाओगे, पर जैसे ये 0.7 से ऊपर जाएगी ये आपका जो है वो फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद इसको आप 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 5 6 7 करते रहो, बट दिस VD इस पॉइंट पे आप जो मेजर करोगे दैट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड VT. जो उसका 0.7 है उसी के आसपास रहेगा, वो 0.72 0.76 0.69 इस तरीके से. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट किया, तब भी आपका देखिए जब मैंने 1 वोल्ट किया था यहाँ पे, अभी 2 वोल्ट पे देखिए मिली एम्पियर में करंट है और यहाँ पे VD देखिए, VD इज योर 0.662 वोल्ट, 0.66 वोल्ट कह लो. और जब इसको हम 1 वोल्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिस इज नाउ 0.62 वोल्ट और करंट आपका माइक्रो एम्पियर में. तो 0.62 से 0.66 वोल्ट जब चेंज हुआ VD तो आपका करंट देखिए कहाँ चला गया एकदम से. ऐसे जब इसको हम 3 4 कर दो तो ये आ गया आप 0.68 पे रीडिंग, 0.68 पे आपका 3 मिली एम्पियर हो गया. ठीक है, 0.7 पे आपका 7 मिली एम्पियर हो गया, डबल हो रहा है करंट. और वोल्टेज जो VD जो इंक्रीज हो रहा है वो 0.1 की हिसाब से हो रहा है. तो आपको ये रीडिंग्स नोट करनी है, थोड़ा बहुत और आगे आप जा सकते हो.
इसको 10 वोल्ट तक ले लेना। ठीक है, 10-12 तक आप ले जाना, और इन दोनों के बीच में रीडिंग आप अलग से एक्सेल शीट में नोट डाउन करते रहो, उन दोनों के बीच में प्लॉट बना देना। ठीक है, वो प्लॉट आपको दिखाना है, आज ही दिखाना है। फिर दूसरी बार जब आप रिवर्स बायस करोगे, उसमें डायोड की डायरेक्शन रिप्लेस कर दो, या फिर आप इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो वैल्यू है उसी को आप चेंज कर दो। यहाँ पे -1 वोल्ट लिख दीजिए। ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। -1 वोल्ट पे यहाँ पे VD आपका ये है, ID आपका -2 पिको एम्पियर है। ठीक है, फिर -1 के बाद -3 करोगे तो -3 में भी आपका सेम है। ठीक है, फिर -10 भी कर दोगे इसको तो अभी आपका यहाँ पे -10 है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इन reverse bias we can replace the circuit with open circuit। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज मिलेगी इस पॉइंट पे, वो आपकी उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो दैट विल बी इक्वल टू VI। इनपुट आपकी जो भी वोल्टेज है वही आती रहेगी। -10 वोल्ट था, -10 वोल्ट, -20 करोगे -20, बट current is still in pico ampere। That's why when you will draw the graph on same graph, while taking the forward region, we will take the reading of current in milliampere, and on the same axis in negative direction we will take the reading in microampere। ठीक है, जो हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा सिंपली वोल्ट्स में होगा। ठीक है, ये अगर आप इसको भी मिली एम्पियर में कर देंगे तो आप जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे then your plot will look like something this। यहाँ पे अगर मिली कर दोगे तो आपका बिल्कुल 0 पे चलेगा, वो 0 से नीचे आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पिको एम्पियर में है। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर में करोगे तब भी आपका जो है वो लगभग इतना ही रहेगा। थोड़ा आगे जाके आपको हो सकता है कि ग्राफ थोड़ा बहुत इस तरीके से होना स्टार्ट करे, यहाँ पे आप कुछ चेंज देख पाओ, अदरवाइज आपको वो भी पॉसिबल नहीं। जब पिको एम्पियर करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ग्राफ करंट वो इंक्रीज होता दिखाई देगा, बट आप माइक्रो एम्पियर में रखिए इस एक्सिस को, उसी के हिसाब से प्लॉट कराइए। फॉरवर्ड में अगर आप करोगे तो आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये आपका एकदम से पीक आएगा दैट विल बी योर नी वोल्टेज VT। तो इस सिलिकॉन डायोड के लिए आपका जो है वो 0.7 वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है, अब आप ड्रॉ करो इसको, दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। सर इसमें एमीटर और वोल्ट मीटर कहाँ पर है? हमने इसमें इसी प्रोब में ही कनेक्ट कर दिया है, यहीं पे। ओके। हाँ, अगर हमारा हार्डवेयर सर्किट होता उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सपोज दिस इज अवर रजिस्टर, तो यहाँ से हम एक प्रोब लेते हैं और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज अवर एमीटर। ठीक है, और इसकी दूसरे टर्मिनल को हम डायोड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और बीच में जो ये वाला कनेक्शन है वो फिर आपका नहीं होगा। जो ये वाला कनेक्शन है वो हम डायोड और रजिस्टर के बीच में नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। अब एमीटर हमारा सीरीज में लगा हुआ है, एमीटर का जो हम आइडियल एमीटर अगर माने तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज जस्ट टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन दी ब्रांच। तो वो करंट जब इस एमीटर के थ्रू पास होके जाएगा तभी हम उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, हाउएवर जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो हम उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। उसकी एक प्रोब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं डायोड के इस एंड पे, पॉजिटिव वाली। ठीक है, और नेगेटिव वाली हम इस एंड पे कनेक्ट करते हैं। So this is actually your circuit that is given in your lab manual for hardware design।
ठीक है, अब मल्टीसिम में हमारा क्या है कि हमें इस तरीके से करने की नीड नहीं है. यू जस्ट कनेक्ट अ प्रोब देयर and that probe will automatically measure the current. Yes, Okay, sir. you can also see that when we connect the voltmeter, we have simply just this knob. One knob you connect anywhere and you can measure the voltage. But when we try to measure the current, then you can see that there is another arrow which tells us the direction of the current flowing. Okay, तो वो आपको मेजर करेगा कि इस हमारी इस पॉइंट पे इधर से इधर जाने की करंट को वो मेजर कर रहा है. अगर किसी सर्किट में करंट यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो वो उसकी वैल्यू को नेगेटिव बताएगा, क्योंकि ये आपको इस डायरेक्शन के हिसाब से मेजर कर रहा है. ठीक है, कीजिए, आप प्लॉट कीजिए, फिर दिखाइए व्हाट यू हैव प्लॉटेड. नोट डाउन द रीडिंग्स इन एक्सेल शीट एंड मेक अ ग्राफ. Excuse me, sir. यस, Sir, where we have to draw this graph? आप एक्सेल शीट में बना लीजिए. Okay, sir. हाँ,
सर यस, मेरा का योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बन गया है। और बन गया, दिखाओ, शेयर करो। हाँ ठीक है, ठीक है, रिवर्स में करो।
ओके, अंशिका जैन। Yes, sir. ओके, शेयर योर स्क्रीन, दिखाओ क्या कर रहे हो। सर अभी बनाया नहीं है ग्राफ। अच्छा, सर्किट बन गया। सर्किट बन गया सर। ओके, बनाओ बनाओ। Yes, विपाशा। sir. विपाशा, रुको सर, कर रही हूँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। ओके, प्लॉट बना लिया। सर वो मैं रफ नोटबुक पे ग्राफ बना रही हूँ। अच्छा, ठीक है, बनाओ। ओके सर। चहक। चहक। यस सर। यस, हाँ। सर अभी ग्राफ बना रही हूँ मैं। बनाओ दिखाओ। सर अभी बना नहीं हूँ, मैं बना रही हूँ अभी। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। देव। सर अभी एक्सेल में एंट्रीज कर रहा हूँ सारी रीडिंग्स की ग्राफ के ठीक है, लिए। ठीक है, दिखाना फिर। ओके सर, अभी दिखाऊं या पूरी एंट्रीज नहीं, करके? बना के फिर क्या प्लॉट आया ओके वो। सर, श्योर श्योर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर रिवर्स बायस में 70 मिलियन वोल्ट तक इंक्रीज कर दिया, फिर भी करंट 140 माइक्रो एम्पियर है। तो सर इसको रफ कॉपी पे तो बनाना बहुत मतलब कैसे बनाऊं? एक कितना कितना वैल्यू ले रही हो? 70। सर मैं आपको शो करूं सर? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करो। तो 70 मिलियन वोल्ट कर दिया तुमने। हार्दिक। एक्सक्यूज मी सर। Yes, have you increased the input voltage to 70 million? सर मैं 0 से 100 से 200 से धीरे धीरे जा रहा था, इंक्रीज हो ही नहीं रहा था सर। फिर वो ऊपर 10x वाला अच्छा, तो फिर आप 70 मेगा वोल्ट बटन कर दिया दबाया ये। तो अभी भी इंक्रीज इतना सही है सर। तो इसको रफ हाँ, नहीं इतना सर ही वो आएगा उसमें, क्योंकि आपका रिवर्स बायस में है ना। देखो अभी तो आपने यस सर। हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, देन यू हैव अप्लाइड 70 मेगा वोल्ट, ठीक है। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, सिलिकॉन डायोड की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है दैट इज अराउंड 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट के बाद उसका जो है वो ब्रेक डाउन रीजन हो जाता है, एंड वंस इट एंटर्स द ब्रेक डाउन रीजन दैट हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड, और फिर आप उस डायोड को जो दोबारा यूज करना
दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो उस ब्रेकडाउन रीजन में हमने चाहेंगे कि हमारा डायोड कभी भी जाए। दैट्स व्हाई वी हैव देयर इज some specification in the specification sheet of the diode that PIV rating of this diode is this volt. तो अभी हमने जो है वो 50 वोल्ट तक भी कर लेते हैं आप तो भी ठीक था, 20 वोल्ट तक कर लो तो भी ठीक है। You just have to understand that in reverse bias condition the amount of current flowing through the diode is almost zero. Okay. अब जैसे आपका 70 वोल्ट आपने किया तब भी पिको एम्पियर में आपका करंट है, whereas in forward bias your current is in milliampere. So we can say that a diode will allow the current to flow only in one particular direction. यस सर। Okay. सर तो इसको ग्राफ पे तो नहीं बना सकते इसकी रीडिंग से? इसकी रीडिंग आप यही रखो, जैसे 140 पिको एम्पियर है उसको आप मिली में या माइक्रो में कन्वर्ट करके कितना बन जाएगा ये 0.14 माइक्रो एम्पियर। यस सर। ठीक है, तो वो 0.14 के आसपास में रहेगा आपका, बेसिकली वो जीरो एक्सिस जो है उसी के आसपास में आपका रीडिंग रहेगी। थैंक यू सर। ओके सर इसका ग्राफ बंद हो जाना चाहिए क्योंकि पिको एम्पियर में अगर आ रहा है, हम ऑलरेडी आईडी रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में करते हैं, तो जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी हमारी वो माइक्रो एम्पियर इनटू और 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो ग्राफ तो बनना चाहिए आराम से। मतलब बन जाएगा, पर वो दिखेगा यही कि वो जीरो लाइन के साथ साथ ही चल रहा है। अच्छा, मैं एक बार अपना डेटा दिखा के फिर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ओके करो। मेरा ये ग्राफ आ रहा है डेटा के साथ, स्ट्रेट लाइन जैसा आ रहा है। ओके, तो जो आपने रीडिंग ली है वो किस में है, माइक्रो एम्पियर में है, मिली एम्पियर में है? किसमें है? माइक्रो एम्पियर में है ना? हाँ, तो आप देखिए ना, ये मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही रह रहा है। अब वहां पे आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका जो वाई एक्सिस का स्केल है वो आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बड़ा इन द सेंस कि उसकी रेंज जो है वो 1 माइक्रो एम्पियर तक भी दिखाओगे तो आपको वो जीरो के आसपास ही लाइन दिखेगी। ठीक है। ओके, okay guys, once you finish this, then you have to also study the VI characteristics of Zener diode.
ठीक है, तो जेनर डायोड में हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली रिप्लेस द डायोड दैट यू कनेक्टेड विद जेनर डायोड। आप उसको जेनर डायोड से रिप्लेस कर देना बस, वो आपको जेनर डायोड भी वहीं मिलेगा जहाँ पे नॉर्मल डायोड मिलता है, दिस एंड देन जेनर डायोड। आपने एक बार जेनर डायोड कनेक्ट किया, अभी ये मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ है, देन सिंपली आपका वही लॉजिक, सेम स्टेप, यू कीप ऑन अप्लाइंग वोल्टेज फ्रॉम -1 मिली वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे मेजर कर लो कितना मिलता है। ठीक है, फिर उसको बढ़ा दीजिए, फिर उसको मेजर करते रहो। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो है जैसे उसमें लेते थे VDID वैसे ही इसमें प्लॉट बनाना। सिमिलरली फॉर फॉरवर्ड बायस, ओके आई हैव जस्ट कनेक्टेड इन, मैंने इसको गलत कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले आप जो है वो जैसे हमने नॉर्मल PN जंक्शन डायोड के लिए किया था वैसे ही करेंगे। फॉरवर्ड बायस 0.1 वोल्ट अप्लाई किया, मेजर दी VDID, फिर 0.2 अप्लाई किया, देन वी मेजर द सेम थिंग। फिर हमने इसी तरीके से करते हुए इसको 1 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ पे आप VDID के बीच में ग्राफ बनाते रहेंगे। ठीक है, जितने भी आप रीडिंग लो आप अपनी मर्जी से, आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ठीक सा बन जाए उस हिसाब से लेते हैं। तो इसमें भी जब आप ग्राफ बनाएंगे, that will be similar to the graph that you plotted in for the normal PN junction diode। तो इसमें भी आपका वैसा ही ग्राफ बनेगा, something like this। ठीक है, but when we will apply the negative voltage, that is reverse bias this diode, suppose हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दिया -1 वोल्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिर भी वही दिख रहा है -1 वोल्ट एंड करंट इज और ऑलमोस्ट 0। फिर -2 वोल्ट, तब भी आपका वैसा ही दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो अराउंड -2 वोल्ट। देन -4 वोल्ट, तब भी आपका उतना ही दिखाई दे रहा है। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया -4.5 वोल्ट। ठीक है, तो आपका ये अराउंड 1 माइक्रो एम्पियर आने की कोशिश कर रहा है, अभी आया नहीं है। फिर मैंने अप्लाई किया -5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट पे आप देखिए आपकी रीडिंग कितनी चली गई है। -4.5 पे आपकी जो रीडिंग है वो है 899 नैनो एम्पियर। अगर हम इसको 1 माइक्रो एम्पियर भी मान लें तो भी एक बार देखते हैं कि -1 माइक्रो एम्पियर है -4.5 वोल्ट पे, और जैसे इसको हम -5 करते हैं आपकी रीडिंग देखिए 105 माइक्रो एम्पियर। फिर मैंने इसको किया -5.5, ठीक है, 570 माइक्रो एम्पियर, 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, -7। यहाँ पे देखिए अभी -5 पहुंचा भी नहीं है और ये मिली एम्पियर में करंट आ गया। फिर आप इसको करेंगे -10 कर दीजिए, तो यहाँ पे -5 अभी भी नहीं हुआ है VD, और ये आपका देखिए -5 मिली एम्पियर करंट है। तो इसका जब आप प्लॉट बनाएंगे तो इसमें हम इधर जो है वो मिली एम्पियर में ही रख सकते हैं। ठीक है, मिली एम्पियर में ही आप रखना, और इसका जो प्लॉट आपका मिलेगा वो मिलेगा समथिंग लाइक दैट। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और फिर एकदम से इस तरीके से दिखेगा। Now this particular point is VZ, जो कि जेनर डायोड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, डायोड जब आपने इंसर्ट किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, दिस इज दी जेनर वोल्टेज ऑफ दिस डायोड। So general diode is generally used in reverse bias region
जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें जो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट होता है वो आपका बहुत आगे जाके होता है, बहुत आगे जाके। मतलब अगर हम सिंपल सिलिकॉन वोल्ट वाला लें तो उसमें जो है वो 1000 वोल्ट के आसपास आपका होता है। ठीक है, अब इसी वोल्टेज को अगर हम कम कर दें तो वो हमारा जीनर डायोड बन जाता है, जो कि यहाँ पर हमारी है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेक करोगे तो ये अराउंड 5 वोल्ट आपका आएगा। तो जैसे ही 5 वोल्ट आपकी रिवर्स में वोल्टेज बनती है उसी टाइम पे आपका जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर जाता है एट दिस पॉइंट। दिस इज अवर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो उसकी जीनर डायोड में और फॉर नॉर्मल डायोड में फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा, दैट विल लुक लाइक सेम। रिवर्स बायस में क्या होगा, आपका ब्रेकिंग पॉइंट डायोड का जल्दी होता है एंड बहुत शार्प होता है। शार्प मीन्स बहुत जल्दी ही आपका जो वैल्यू है, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, जो V की वैल्यू है। ठीक है, और जैसी 5 के आसपास आएगी एकदम से आपका करंट शार्पली इंक्रीज करेगा। नॉर्मल डायोड में ये पॉइंट बहुत आगे जाके होता है, जीनर डायोड में ये बहुत पहले होता है। So you also have to draw the characteristics curve for Zener diode. You don't have to do anything extra. You just have to replace the normal diode with Zener diode. The other process, whole process is same. Okay. So any doubt in this? एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर मेरा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बना है, एक बार दिखाऊं? Yes. 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 Please share. Okay. Now, what is on the x-axis? सर ये मिली स्केलिंग एक बार एडजस्ट करनी है मुझे। वैल्यूज ये वाली हैं, जो ये सारी हैं, ये करंट है मिली एम्पियर्स में। Actually, I think you have plotted the graph between this column C and column A. कॉलम बी नहीं आया है, एक्स एक्सिस पे मिली वोल्ट में नहीं आया आपकी रीडिंग। तो ये देखिए यहाँ मैं पे एक बार वो आपके, चेक कर हाँ ग्राफ के वापस अंदर ही आप बनाता हूँ मैं देखिए, फिर। हाँ उसमें ओके फिर आपको शार्प दिखेगा। ओके सर। ओके, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट 3। जो जेनर डायोड का है वो आपको एक्सपेरिमेंट 3 के नाम से है लैब मैनुअल में। तो एक ही सिंपल सर्किट से आप एक्सपेरिमेंट 2 भी कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट आपका 3 भी हो जाएगा।
अभी बताइए, आप लोगों ने किया कुछ पाखी? यस सर, मैंने फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाया, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक मेरे को आगे की भी रीडिंग्स लेनी चाहिए, 10 वोल्ट के आगे की। नहीं, 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट मत देखिए आप, जो इनपुट सप्लाई है आप यहाँ पे हाँ देखिए, सर, यहाँ वो पे नहीं कितनी देख आएगी? रही। हाँ, एक सेकंड सर, यहाँ पे वोल्टेज मैंने जो मेजर करने वाली है वो 0.7 वोल्ट हाँ, तो तक आपका नहीं है। आपकी रीडिंग्स इनफ है। आप जो है वो 10 ओके वोल्ट के सर, हिसाब से प्लॉट मत कराइए, वीडी और आईडी के नहीं बीच में सर, प्लॉट मैं कराइए। ग्राफ दिखाऊं आपको, मैंने बनाया है। हाँ हाँ, एक करो, सेकंड, शेयर करो। एक सेकंड। हाँ, ठीक तो है, करो। सर बट वो जो बीच में एक 5 अच्छा ठीक है सर, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। हाँ, आप और रीडिंग लेके इसको थोड़ा बहुत स्मूथ बनाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, बट ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, खुशी। खुशी, unmute yourself and share the screen. You are not audible, Khushi. Hello. Okay, okay. सर इस एक्सपेरिमेंट का जो रिटन पार्ट है वो हमें प्रैक्टिकल नोटबुक मिल से लेना है 100। रिटन पार्ट जो है वो, हाँ सर, उसका क्या करना था? सर उसको लैब प्रैक्टिकल में लिख लेना है या टाइप करने से हो जाएगा या हैंड रिटन करना है? नहीं नहीं, आपने जो प्लॉट लिए हैं उसी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, वो इनफ है। ओके
हाँ मतलब ऊपर एक क्योंकि हेडिंग डाल ये दीजिए वाला कि जो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और क्या आपका एक्सपेरिमेंट का एम है वो डाल दीजिए, और उसके बाद आपने जो भी रीडिंग्स ली हैं उसकी टेबल इंसर्ट कर दीजिए। फिर आपने जो प्लॉट बनाए हैं वो प्लॉट इंसर्ट कर दीजिए। फिर नीचे आप कुछ भी कमेंट लिखना ओके चाहते हो कि फॉरवर्ड बायस में करंट कब इंक्रीज कर रहा है, रिवर्स में कब इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्या उसका ओवरऑल मीनिंग है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिख सकते ओके हैं। यस ठीक। सर इसमें जीना डायोड वाला भी ऐड करेंगे क्या? जीनर डायोड के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे सिंपली आ जाएगा ओके टू सर। स्टडी दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, और फिर दोनों की सर्किट डायग्राम जो है वो आपने स्कीमेटिक डायग्राम उसमें बनाए हैं मल्टीसिम में, वो लगा देना, दोनों की प्लॉट लगा देना, ओके सर। और रीडिंग्स की टेबल। ओके सर। एंड देन ऑब्जर्वेशन में यही आप कुछ भी थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने क्या क्या इसका मतलब निकला है, क्या इसका मीनिंग। ओके सर। ओके Sir, I was asking instead of doing it on the computer, can we still write in the copy and give a PDF to you for submission? अब कॉपी में लिखोगे लेकिन आपको स्कीमेटिक डायग्राम और वो तो देने ही पड़ेंगे। So we'll take a picture and then combine it all in a PDF and then make it. हाँ वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। Okay, so your link I think is active now. ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस लिंक था उसी लिंक पे जाके आप सबमिट कर सकते हो। एंड दिस टाइम देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा फील्ड देयर विद द नेम एक्सपेरिमेंट नंबर। आई विल शो यू। Right there. So one extra field has I have added. So if you are submitting file for second experiment, just enter 2. For third experiment, enter 3 and so on. ठीक है, तो आप इसी लिंक से जो है वो अपनी प्रोफाइल्स जो है वो सबमिट करते रहिए ना। फॉर वन एक्सपेरिमेंट यू मस्ट सबमिट ओनली वन फाइल, एक से ज्यादा फाइल सबमिट मत कीजिए। जो आप सबसे पहले करोगे वही आपकी काउंट होगी। आप थोड़ा देख लीजिए, अगर आप में कोई डाउट लगता है कि आपसे कुछ गलत फाइल इंसर्ट हो गई है, देन फर्स्ट कॉन्टेक्ट मी, ओनली देन अपलोड।
Okay, please send link. Your link is same which is available on your website. आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे लैब सबमिशन की वेबसाइट है, there you will find the link for ECE. Now click on that link and this Google form will appear, and there you enter your name, application number, lab group number, experiment number, and upload the file and the submit. Okay. Okay, sir. Okay. Now, if you guys have any doubt in first 3 experiments, we have done 3 experiments. In first experiment, we just designed a simple circuit in multisim. Then second and third, we have studied the VI characteristics of PN junction diode and our Zener diode. ठीक है, तो आपको रीडिंग लेने में प्लॉट आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उसमें जो भी आपको दिक्कत लग रही है वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कुछ मिस्टेक्स जिससे आपको लगता है कि आपका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है, वो क्या हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि आप इस एक्सिस के ऊपर, जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो हम रीडिंग लेते हैं, वो हम कई बार ये वाली रीडिंग ना लेके हम ये वाली रीडिंग ले लेते हैं, तो उससे आपका जो प्लॉट है वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो रीडिंग यहाँ से आती है वही ध्यान में हमने रखनी है। ठीक है, दूसरी रीडिंग जो हमने देखना है, जो कि हमारी काम आएंगे रिवर्स बायस में, उसमें है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं जो आप यहाँ से लेंगे वो मिली एम्पियर में है कि माइक्रो एम्पियर में है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर नॉर्मल डायोड आप ले रहे हो तो यहाँ पे हम एक्सिस जो लेंगे वो हम लेंगे माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, और कई बार आपका यहाँ पे जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखा देगा पिको एम्पियर में या और भी कम में दिखाएगा। तो जब प्लॉट करने लगो तो उसको माइक्रो में कन्वर्ट करना, फिर यहाँ पे प्लॉट करना। सेम केस फॉर जेनर डायोड। तो ये यूनिट जो है आप यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उससे क्या होगा, अगर आपने यूनिट ठीक से नहीं ली, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 पिको एम्पियर और यहाँ पे आपने एक्सिस लिया है माइक्रो एम्पियर, और 200 को आप प्लॉट करा दोगे तो आपका ग्राफ जो है वो आपको यूँ दिख सकता है। वेराज अगर आप 200 पिको एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.2 के आसपास बनेगा, तो फिर वो आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा यूँ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, so now I am going to end this meeting. If you guys have any doubt, you can contact through GR, and you can also take my contact number from the GR and contact me. Okay, Oshiki, I think you have my contact number. Yes, sir, I do. Okay. And please submit your files on time. So submission time for submitting these 2 files will be next Thursday before 8 o'clock. ठीक है, तो अगली लैब से पहले आप उसको प्लीज सबमिट कर दीजिएगा, दोनों फाइल। Okay. Okay.